मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। I'll tell you one thing today here. एक अच्छा मसीह और एक खराब मसीह नहीं होता। There is no good or bad believer. ध्यान से सुनो, Hear carefully. एक अच्छा और एक बुरा मसीह नहीं है। There are bad believers. क्योंकि जिस दिन आपने मसीह को अपनाया, The day you receive उसने Jesus, आपको अपने लहू से धोया और शुद्ध और पवित्र कर He दिया। washed you with His blood and made you holy and pure. सो अब एक अच्छा मसीह और बुरा मसीह नहीं है। So now there is no good believer or अब bad है believer. एक आत्मा से भरा हुआ मसीह और एक खाली मसीह। Now the difference is a spirit-filled believer and an empty believer. That's it. इतना ही. अगर आप आत्मा से भरे हो If you are filled with the तो जो Spirit, देखते हो बदल जाएगा। then what you see will change. अगर आप आत्मा से भरे हो If you're filled तो जो with the सुनते Spirit, हो वो बदल what जाएगा। you hear will change. अगर आप आत्मा से भरे हुए हो If you're filled with the तो Spirit, चाह के भी पवित्र आत्मा आपको उन जगहों में जाने नहीं देगा जहां पे आप जाना चाहते हो। even if you want to go to places, the Holy Spirit will not allow you आपका to go there. चाल चलन पवित्र आत्मा बदल देगा पूरी रीति से। Your very walk and your behavior, the Holy Spirit will change in Jesus' name. आमीन। कई लोग बोलते हैं कि हम तो वचन बोल रहे हैं, कुछ क्यों नहीं हो रहा है। Some people say, I'm speaking the word, why is nothing changing? आज मैं आपको उसका आंसर देना चाहता हूं। I'll give you the answer to that today. Acts 2:4 says, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. प्रेरितों के काम 2:4, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे. किसने बोली अन्य भाषाएं? Who spoke other tongues? हाँ, किसने बोली? किसने बोली? उन लोगों ने बोली। पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी। पर आप जानते हैं पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य दे सकता है और आप ऐसे हो सकते हो। The Holy Spirit gave them power, and you know, Holy Spirit can give you power to speak, but you can be like this. जब पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा, मुंह खोलो और बोलना शुरू करो। When the Holy Spirit gives you the ability to speak, open your mouth and start speaking. रे ब्रोगांडाला ब्रोगा शांदे के दे नेम रे गे डोना मजांदे। जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहोगे, उसकी आत्मा से भरते जाओगे। As you will keep on speaking in tongues, you will be filled with the power of God. पूरी बाइबल में जब मैं एक्ट्स में पूरा इसको देख रहा था और पूरी बाइबल में देखो, केवल वचन बोलना काफी नहीं है। वचन बोलने से पहले आत्मा से भरकर जब वचन बोलोगे तब वो वचन कारगर होता है। Just by speaking the word is not enough. When you are filled with the Spirit of God and you release the word, that's when things happen. Amen. Acts 4:31. प्रेरितों के काम And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken. जब वे प्रार्थना कर चुके तो जो स्थान वहां जो इकट्ठे थे वहां हिल गया. And they were all filled with the Holy Spirit. और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए. क्या हुआ जब वो भर गए, परिपूर्ण हो गए तो? What happened when they were filled with They the Spirit? started to speak the word of God with वे boldness. परमेश्वर का वचन हियाव के साथ, हिम्मत के साथ They बोलने started लगे. to speak the word of God with वो boldness. परमेश्वर के वचन को हिम्मत से बोलने लगे. Amen. Amen. Acts 4:8. प्रेरितों के काम 4:8. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर उनसे बोला. rulers of the people and elders. लोगों के शासकों और धर्म. क्या किया पतरस ने? क्या पहले किया उसने? पवित्र आत्मा से भर गया, फिर बोला। First he was filled with the Holy Spirit and then he began to speak. See, the Lord told me one time that you minister to people through my word. प्रभु ने मुझसे एक दिन कहा कि तू लोगों की सेवकाई मेरे वचन से करता है. But also you have to minister to them through my spirit. लेकिन साथ ही उनकी सेवकाई मेरी आत्मा से करो. Maybe what will happen is when the manifestation of the Holy Spirit is there, some people will get uncomfortable and they leave. शायद ये होगा कि जब पवित्र आत्मा चाल चलन करता है तो कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाएं और चले जाएं उठ के. वो कहेंगे ये क्या हो रहा है? They'll say, what is this happening? That's okay. कोई बात नहीं. ये कोई हल्दीराम थोड़ा है This is not Haldiram. कि हर किसी को डोसा पसंद आना चाहिए। That everybody should like the dosa here. ये परमेश्वर का घर है This is the house of God. और वहाँ उसका आत्मा कार्य करेगा और हम उसे पूरी फ्रीडम देंगे कार्य And करने His की। Spirit will work in this house and will give him complete freedom to work. अगर लोग आकर
If when people come, अगर दुष्ट आत्माओं से आजाद ना हो, चंगे ना हो, तो क्या फायदा कलीसिया आने का? क्यों जा रहे हैं हम कलीसिया? if people come to the church and they are not set free from demons, they're not healed, then what is the point of going to church? Why are we even going to church? You're not coming for a nice sermon. आप अच्छा उपदेश सुनने थोड़ी आ रहे हो. Amen. Can we say, Holy Spirit, yes, this is your church. क्या हम ये कह सकते हैं, हाँ पवित्र आत्मा ये आपकी कलीसिया है. Do what you want to do. जो करना चाहते हो करो We प्रभु. give you freedom to move. हम आपको पूरी आजादी देते क्योंकि हैं. पवित्र आत्मा कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा किसी के ऊपर. Because the Holy Spirit will never force on मगर anyone. अगर कलीसिया एक भूखी कलीसिया है, तो एक महान पवित्र आत्मा के आउटपोरिंग को उंडेले जाने को आप देखोगे. But if the church is a hungry church, you will see a great outpouring of His Spirit. कितने लोग यहाँ ऑल नाइट प्रेयर में थे 7 घंटे? How many people were here for the Come all-night on, prayer? अब 7 हाथ हिलाओ. hours. Show me your hand. ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया. आपने देखा 7 घंटे हो गए, मगर 7 घंटे भी पता नहीं चले परमेश्वर की उपस्थिति में. 7 hours were not enough in God's presence. 7 घंटे भी हमने टाइम पे सर्विस खत्म नहीं करी. Even then we could not finish on time. 7 घंटे की सर्विस भी डिले हो गई. Even the 7-hour service was delayed. तो समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ. So understand what I'm saying. Acts 9:17, Ananias departed and entered the house, and laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road by which you came has sent me so that you may regain your sight and be filled with the Holy Spirit. तब हनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए. Amen. पौलुस को स्क्रिप्चर्स आते थे, पुराना नियम उसे पूरा आता था. Paul knew the entire Old Testament. मगर क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा नहीं था, इसीलिए यीशु मसीह को नहीं जानता था. बाइबल तो जानता था, मगर यीशु को नहीं जानता. But because he was not filled with the Holy Spirit, he did not know Jesus. He knew the Bible but not Jesus. ऐसे कितने मसीह हैं आज There are so many जो believers like बाइबल को that तो जानते हैं, who know the मगर Bible, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे नहीं, But उस because- मसीह को नहीं जानते. because they are not filled with the Holy Spirit, they don't know that Christ. हालेलुया. आज परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है. Today God wants to fill you completely with His Spirit. आमेन. मुझे लग रहा है आज मुझे प्रचार करना ही नहीं चाहिए था. I think I should not have preached at all. बाइबल कहती है, while Peter yet spoke, Holy Ghost came on them. बाइबल कहती है जब पतरस बात ही कर रहा था, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर गया. हालेलुया. हालेलुया. तैयार हैं आप पवित्र आत्मा से भरने के लिए, उस आनंद से भरने के लिए? हालेलुया. आइए हम सब खड़े हो जाएं. लेट मी जस्ट